गगन में भी तू ही आधार, तू ही आधार, तू ही निरंकार, तू ही सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत आज यहाँ गोवा की राजधानी पंजिम में आप सभी इस मैदान में उपस्थित हैं। एक श्रद्धा भक्ति भाव से युक्त होकर चंद वर्षों के बाद फिर से गोवा में आने का मौका मिला है। पहली दफ़ा अर्ली 80s में गोवा में आने का मौका मिला था। उससे पहले केवल गोवा का नाम ही सुन रखा था और तब से पीरियोडिकली समय समय पे यहाँ पर भी गोवा में आने के मौके मिले और अलग अलग स्थानों पे अलग अलग एरियाज़ में सत्संग करने का मौका मिला। और आज भी यहाँ आप सभी के साथ इस सत्संग के रूम में ये घड़ियाँ बीत रही हैं, तो बहुत प्रसन्नता महसूस हुई कि आप सभी श्रद्धा भाव से यहाँ पर युक्त होकर मानवता इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं और आप भी इसी मानवता के रास्ते पे डगर पर चल रहे हैं और अपनी तमाम जिम्मेदारियों को इसी मानवीय गुणों से युक्त होकर निभा रहे हैं। चाहे वो परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, समाज के प्रति है, देश के प्रति है या फिर सारी मानव जाति के प्रति है। तो ये जिम्मेदारियां इस तरह से निभाई जाती हैं जो एक कदर व कीमत जानते हुए इंसान की, मानव की। तो इसी तरह से और भी यहाँ सज्जनों के दर्शन हुए। यहाँ के सीएम साहब, उनको आपने दो चार शब्द उनके सुने, जिन्होंने मिशन के संदेश को इस प्रकार से पहले भी जानते हैं कि मिशन का मकसद क्या है और क्या प्रिंसिपल्स और असूल हैं। इसी प्रकार से और भी देश की सेवा, इस प्रांत की सेवा करते हुए देश की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बैठे हुए हैं या फिर डिप्टी मेयर साहब या और भी ऐसे सज्जन जो देश की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। और वाकई ही आप भक्तजन जहाँ मानवता इंसानियत का जिक्र करते हैं, तो वही मानवता इंसानियत देश की सेवा के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए आप देश प्रेम का भाव भी मन में रखते हैं। किसी भी प्रांत के हों, किसी इलाके के हों, आप सभी देश की अखंडता के लिए भी लगातार अपने योगदान देते हैं, क्योंकि आप में वो खुदगर्जियाँ नहीं हैं, आप में वो संकीर्णताएं नहीं हैं, वो नैरो माइंडेडनेस नहीं है, एक सहनशीलता का भाव है। इसीलिए इस देश की अनेकता के होने के बावजूद आप सभी मानते हैं कि इस अनेकता में एकता की ज़रूरत है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, that's what is required, not just in this country, but all over, in all the countries. That's what saints and sages and prophets have been teaching, and their message was based on love, compassion, tolerance. So, that's what is required, to live in peace. That's what is required.
if we are narrow-minded, if we are intolerant towards others, we will always have hatred in our hearts for others. And for that matter, we will be always eager to be violent, to inflict injuries on others, or to do and establish some devastation out there. At that time, we do not even consider the infant's newly born child because we are full of hatred. We will just be merciless and we'll be butchering and killing even the infants. What fault is with them? We forget that we were born as human beings. When a child is born, what language does that child speak? Have you ever heard that such and such child is weeping or crying in Marathi or in Konkani or Punjabi or Sindhi or Gujarati or English or Latin? All over, it's a universal fact that when a child is born and that child cries, it doesn't have any language. For that matter, a child doesn't have any sign on his body that he belongs to such and such a religion or belongs to such and such culture. He's just a child having that spark of the overlord, the oversoul. That spark in the form of soul is in that child. And as time passes, then the thinking is conditioned in such a way that that innocent child now is gradually becoming narrow-minded. He is gradually intolerant towards others. And he will have no love or compassion for other persons who believe in a different form or have different beliefs or they have regards for a certain prophets or scriptures. So on the basis of religion too, this mind is maligned and people start fighting each other, just forgetting the teachings of the saints and sages and prophets, that we are born as human beings and we belong to the one common family of mankind. Why do we fight each other? So many wars have taken place, and till date, although so much advancement has taken place, but we are still fighting each other. So many barriers we have created, and for that matter, all barriers are man-made barriers. And saints and prophets since time immemorial, they have been teaching us to be one. We can be one. If we are one with the one, means one Lord God Almighty, name it Allah, name it Ram, name it God, or name it by any name you address this God Almighty. It remains one entity, common entity, all-pervading entity. So, unless and until we are one with this one, we can't be one. The humankind cannot be one. We are a fragmented lot. We are in fragmentation. We are a divided lot. That is very opposite to the teachings of saints and sages. May it be Tukaramji, Namdevji, may it be Lord Jesus Christ or Prophet Muhammad or Ram, or may it be Shri Guru Nanak Dev Ji Maharaj. They all taught this mankind to live in harmony. We must coexist in harmony. Peacefully, we should coexist.
Not that we are coexisting but fighting each other on certain bases and factors, once again, which are the creation of ignorance and narrow-mindedness, creation of egoism or intolerance or selfishness. So today also you listen to the words of wisdom which were pointing towards that important aspect in our lives. So this world which we are living in, the planet Earth on which we are born and we live on, this common planet Earth, why should we be a divided lot on the basis of caste, creed, color, religion, nationalities? We are one. We are all made out of 5 common elements, our physical forms. We are all composition of 5 common elements. One may be American or Canadian or a Japanese or a Chinese or an Arabic. We are all composition of 5 common elements, all the physical forms we are seeing. So that sort of realization and awareness has to take place. As I said that we are a divided lot. As I have been mentioning many times that first time I happened to visit Berlin, January 1988. At that time, there was the Berlin Wall, and we crossed over to the eastern side, and we saw and felt the vast difference between the west and the east. And once again, after a few years, I again visited Berlin, and at that time, the wall was no more. The wall had been pulled down. But at the same time, few pieces of the wall were maintained as a memorial sort of. And few years down the line, once again when I visited Berlin, there were so many quotations and sayings and wordings which were written on the pieces of walls which were still maintained. And on one of the piece of wall, what I read, it took place deep in my heart. And the wordings were that our world is too small for walls. That our world is too small for walls means that there is no place of walls on this planet Earth. तो आज भी महापुरुष संत जन यही संदेश और पैगाम दे रहे हैं कि एकला जाना एकला माना एक वाह, कि एक को जानो एक को मानो और एक हो जाओ, एकता के सूत्र में बंध जाओ। चाहे कोई किसी भाषा वाला है, कोई संस्कृति वाला है, हम सारे ही मानव के रूप में पैदा हुए हैं, जो एक ही परमात्मा ईश्वर की संतान के रूप में हम सब, ये एक परिवार कुटुंब, वसुदैव कुटुंबकम, ये हम वेदों के उद्घोष पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वसुदैव कुटुंबकम के इस वसुधा मीन्स धरती, इस धरती पे बसने वाले तमाम इंसान एक परिवार का अंग है। और वो परिवार किसका है? वो परिवार खुदा का है, ईश्वर का है, अल्लाह का है, गॉड का है, राम का है, अकाल पुरख का है। एक ही परमात्मा के परिवार का हम सब हिस्सा हैं। तो इसलिए वेदों में भी ये उद्घोष किए गए कि वसुदैव कुटुंबकम, के कुटुंब परिवार कहते हैं, वसुधा ये धरती। तो इस धरती पे हम परिवार की तरह विचरण करें,
जहाँ पर भेदभाव ना हो, जहाँ पर एक दूसरे के दुख सुख को बांटें, जहाँ पर हम एक दूसरे के सहयोगी हों, जहाँ पर हम एक दूसरे को खुशियाँ देने वाले हों, हम आबाद करने वाले हों, बर्बादी ना करें, एक दूसरे पे जुल्म और सितम ना करें। इस तरह से हमारा समय इस जीवन का इस धरती के ऊपर इस प्रकार से बीते, ये सफ़र जीवन का इस तरह से तय हो। तो ये आज भी महापुरुषों ने कोंकणी भाषा में क्या, अंग्रेज़ी भाषा में क्या, हिंदी पंजाबी भाषा में क्या, गीत कविता के व्याख्यान के रूप में इन्होंने यही एक यूनिवर्सल मैसेज दिया है, ये यूनिवर्सल ये संदेश दिया है जो कि युगों युगों से रहा है। क्योंकि सच्चाई नई नहीं हुआ करती है, ये सत्य तो इटर्नल होता है। ट्रूथ इज ऑलवेज इटर्नल, इट इज नॉट a worldly truth which changes after a few kilometers or miles you travel, or it differs from person to person, or the truth in the form of time or place or region, these are all changeable, and there is so much difference. At this time, it is night time here in India, in Asia. But when we talk of Europe or go further to North America, it's daytime out there. There people are saying good morning, and we are saying good night. So, one given time, there is no commonality. The climatic changes we see, at one time, at one place, it is winter's time, and at the same time, it is summers for others. So what I'm trying to mention or to convey is that the commonality which is eternal and universal is in the form of this ultimate truth, that is God Almighty. So we have to know this God Almighty. We have to be one with this God Almighty. We have to know its true existence, which is in the form of formlessness. It is strange that in the form of formlessness, it is the unique and most important quality that this God is formless. And the creation is in the form of form. We all have a form. The mountains have a form. The planets have a form. The trees and the bushes have a form. They are in a form. And this God Almighty is formless, all-pervading, everlasting, unchangeable, stable. तो ये परमात्मा अचल, अविनाशी, एक रस रहने वाला, ऐसे परम अस्तित्व निराकार के साथ नाता जोड़ने की बात हो रही है, इसकी पहचान करने की बात हो रही है, इसको आधार बनाने की बात हो रही है, इसको हृदय में बसाने की बात हो रही है। और इसलिए इंसानों को ये संदेश और ये पैगाम दिया जाता है कि हे इंसान, तू इस मंजिल को पा ले, इस सत्य को जान ले, इस स्लम्बरनेस, इस गफलत की नींद से उठ जा और अपने असली अस्तित्व में तू स्थित हो जा। ये तुम्हारा जो असली अस्तित्व है, इसमें तू स्थित हो जा। और इसमें जो भी स्थित हुआ है, जब भी स्थित हुआ है, उसने ही अपने जीवन को भी ऊंचा दर्जा दिया और वो औरों के लिए भी
वरदान बना है, औरों के लिए भी सुखदायी बना है, औरों के लिए भी उसका धरती पे विचरण करना वो मंगलमय रहा है, वो कल्याणकारी रहा है उसका जीवन। तो आज भी ऐसी ही देन दी जा रही है, आज भी यही एक संदेश और पैगाम दिए जा रहे हैं जो युगों और सदियों से वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने दिए थे। हर मानव के लिए, हर इंसान के लिए उसकी अहमियत है, उसकी इम्पोर्टेंस है, उसकी विशेषता है, हर किसी के लिए। तो यही प्रार्थना भी की जा रही है कि अगर हर किसी के लिए इसकी विशेषता है तो हर कोई एहसास करे, हर कोई जागरूक हो जाए, हर कोई अवेयर हो जाए, हर कोई एक रोशनी से युक्त हो जाए, ताकि सारे ही इस कदर इस धरती पे विचरण करें कि उसका नतीजा इस प्रकार से निकले कि सुकून और चैन हर कोई महसूस कर पाए। वो चाहे हिंदुस्तान का वासी है, चाहे वो पाकिस्तान का वासी है, चाहे वो किसी प्रांत का वासी है, सारे सुकून और चैन की महसूसियत करें। और सुकून और चैन होता ही अमन में है, अमन है, पीस है, और फिर हम शांति की, सुकून की महसूसियत करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले भी आपने मिशन का नारा जो सुना, जो यहाँ पर दोहराया गया कि पीस नॉट पीसेस, कि पीस, अगर पीस होता है तभी हम सुकून महसूस करते हैं, शांति में ही सुकून की महसूसियत होती है। तो सुकून चारों तरफ हो, इसलिए शांति का होना ज़रूरी है। और शांति होगी तभी अगर हम तमाम भरमों को मिटाएंगे और उन भरमों के ऊपर आधारित बंधनों से छुटकारा पाएंगे। तब तक ये संभव नहीं है, तब तक हमारी सोच संकीर्ण बनी रहेगी, हम इसी तरह से दूसरे को दुत्कारते रहेंगे, अपने ऊपर अभिमान करेंगे, दूसरों को तुच्छ मानेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे, एक दूसरे को नीचा मानते रहेंगे। वो मानेगा कि ये नीचा है, वो दूसरा मानेगा कि नहीं तू नीचा है। इस तरह से नीचा ही नीचा दूसरे को मानते चले जाएंगे, अपने आप को ऊंचा मानते रहेंगे, अपनी जाति को लेकर, मज़हब को लेकर, अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर, अपनी विद्याओं को लेकर, अपनी धन दौलतों को लेकर अपने आप को ऊंचा और दूसरे को नीचा मानते रहोगे तो फिर कभी भी हम इस तरह से एक शांति स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो ये एक दूसरे को नीचा ये देखने वाली और दिखाने वाली प्रवृत्ति जो है, ये जितनी देर इंसान के मन में रहती है, जितनी देर इंसान इस प्रवृत्ति से, फितरत से युक्त रहता है, उतनी देर ही इंसान का रुतबा ऊंचा नहीं हो पाता है। वो पति और पत्नी की मिसाल भी कई दफ़ा दास ने दी कि किस तरह से एक पति और पत्नी जा रहे थे और पत्नी अपने पति को कहती है, क्या बने हुए हो, देखो अपनी तरफ, एक मदारी लग रहे हो। तो आगे से पति कहता है, मदारी क्यों ना लगूंगा, तू बंदरिया जो मेरे साथ चल रही है। तो एक दूसरे को नीचा ही दिखा रहे हैं। तो इसी तरह से सारे ही एक दूसरे को नीचा करके देखते हैं और अपने आप को ऊंचा करके। और अगर संतों महात्माओं की वाणी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वहाँ पर विनम्रता हमें मिलती है कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, कि मैं अच्छा नहीं हूं और दूसरा कोई बुरा नहीं है। अपने आप को विनम्र, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, rather than being an egoist and looking down upon others. हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई,
कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोय। कबीर जी कह रहे हैं कि मैं बुरा हूं सबसे और मेरे को छोड़ के सब भले हैं। तो ये सारे ही हमसे बेहतर हैं, ये मानकर चल रहे हैं। जैसे वो भी मिसाल आपने सुनी है दुर्योधन और युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर को कहा गया कि ढूंढ कर लाओ जो बहुत ही इंसान नीचा है या बुरा है, उसको लेकर आओ। और दुर्योधन को कहा कि जो सबसे अच्छा है, गुणवान है, उसको लेकर आओ। दोनों निकले और जल्द ही दोनों वापस लौट आए। तो पूछा गया कि इतनी धरती बड़ी, कितने कितने लोग हैं, तो ये शर्त, ये काम सौंपा गया था तुम्हें कि ढूंढ कर लाओगे। अभी तो आप 8-10 आदमियों को भी नहीं मिले होगे, इतनी जल्दी कहाँ पर आपने ढूंढ लिया। तो आगे से जब युधिष्ठिर से पूछा गया, वो कहने लगा कि मैं जल्दी इसलिए लौट आया क्योंकि थोड़ा सा ही आगे गया था मैं, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे में ही इतनी कमियां हैं, तो मैं दूसरे को क्या देखूंगा। और दुर्योधन, तू भी जल्दी लौट आया? कहने लगा हाँ, मेरे में मन में भी ध्यान आया कि मेरे से अच्छा कौन हो सकता है इस धरती पे। सबसे गुणवान तो मैं ही हूँ, बाकी तो सारे ही किसी में कोई गुण नहीं है। मेरा क्या मुकाबला करेंगे, मेरे से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो मैं खाम का अपना समय बर्बाद करता, मैं भी जल्दी लौट आया इसीलिए। तो दोनों की सोच में कितना अंतर है, दोनों की दृष्टि में कितना अंतर है। इसीलिए दुर्योधन के मुकाबले में युधिष्ठिर का महत्व है। इसी तरह से तमाम राजा महाराजाओं, सम्राट, बलशाली लोगों से कहीं अधिक ऊंचा स्थान है उनका जो विनम्र भाव वाले थे, दास भावना वाले थे। अभी आज सुबह ही दास कोल्हापुर में सत्संग भवन में जिक्र कर रहा था कि महाराष्ट्र में जो गवाह मांगा जाता है और प्रेम नम्रता चे जो गवाह, भाव भक्ति चा जो गवाह, तो वहाँ पर दास ने ये जिक्र किया कि ये जो गवाह शब्द जो जिस रूप में कहा जाता है, तो उसको दास ने थोड़ा सा हिंदी का रूप दिया कि मैं जो मैं है, मैं जो गवा दे, जो अपनी मैं को, मैं जो गवा दे, जो अपनी मैं को गवा दे, जो भी, वही ऊंचा हो जाता है। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचियो मिले नीच जल संगा। कि गगन आसमानों को छू लेती है वो धूल, जो कि पवन का संग कर लेती है, वो आसमानों को छू जाती है। तो आपस को जो जाने नीचा, सही गनिए सब ते ऊंचा, ये धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। तो बात हो रही है हम्बलनेस की, ह्यूमिलिटी की। और दूसरी तरफ इंसान अभिमानी और अभिमानी बनता चला जाता है। एक और मिसाल कई बरसों के बाद याद आ गई। पहले तो दास कई दफ़ा उस मिसाल को दिया करता था, अब कई बरसों के बाद अभी बोलते बोलते जहन में आ गई कि एक अफलातून था, तो वो सोया और सोए हुए उसको कोई आवाज़ सुनाई दी कि अफलातून, चंद दिनों का तो मेहमान है, तेरा अंत हो जाएगा, तेरी मौत हो जाएगी। हड़बड़ा के भय के साथ उठा, डरा हुआ, सहमा हुआ कि मैं इतनी जल्दी संसार से चला जाऊंगा। ये आवाज़ आई है कि चंद रोज़ का मेहमान है तो इस धरती पे। तो बहुत कोशिश की, कभी एक के पास जाए, कभी दूसरे के पास जाए, कोई तो ढंग बताओ, कोई विधि बताओ, मेरा बचाव हो जाए, मेरी मौत ना हो। हार कर
उसके मन में ख्याल आया। वो बहुत बड़ा कलाकार था, बहुत सुंदर आकृतियां बनाता था, जैसे कि सचमुच वो उसमें केवल धड़कन नहीं है, बाकी सब कुछ हूबहू जिसकी भी वो मूर्ति बनाता था ऐसे ही लगता था कि ये जानदार है। तो एक दिन जब वो समय बराबर आया तो वो जमदूत आए, और जमदूत आए, उन्होंने क्या देखा कि कितने ही अफलातून, क्योंकि उस अफलातून ने माहिर था उस आर्ट में, उसने ठीक अपनी ही शक्ल सूरत वाले दर्जनों बना दिए, और आप भी उन्हीं में खड़ा हो गया सांस रोककर कि वो धोखा खा जाएंगे जमदूत। तो जमदूत भी हैरान कि ये क्या, हम तो एक अफलातून को लेने आए थे, यहाँ तो कितने हैं। तो वो वापस लौटने लगे तो उनमें से एक दूत कहता है कि अफलातून है तो कमाल है, इसमें क्या इसकी कलाकारी है, ये कितना ही इसमें गुण हैं, लेकिन इसमें एक कमी रह गई। जब उसने दूत ने कहा कि एक कमी रह गई, तो अफलातून जो उन्हीं में खड़ा हुआ था अपनी जैसी शक्लों वालों में सांस रोककर एकदम से कहता है, कौन आया है मेरी कमी निकालने वाला। तो दूत कहते, आजा, तुझे ही लेने आए थे। उसका इतना बड़ा अहंकार कि उस अहंकार के कारण ही बचता बचता मर गया, खत्म। तो इस तरह की कितनी ही मिसालें, किस्से, कहानियाँ ये हमें सुनने को मिलती हैं कि हम भी मैं के कारण मारे ना जाएं। मारा गया वही जिसने कहा कि मैं बड़ा। जिसने भी मैं किया उसी का ही अंत हुआ है, चाहे वो कोई भी हो। अहंकार हमेशा ले डूबता है। तो महापुरुष संतों ने कहा कि नहीं, मत कर रहे अभिमान रे बंदे, मत कर रहे अभिमान, कि अभिमान मत कर, अहंकार मत कर। सर राखे सर जात है और सर काटे सर होत। ये भी पंक्तियां हम पढ़ते हैं कि सर काटे सर होत है और सर राखे सर जात। इसका मतलब क्या कि सर काटे सर होत है, जब सर ही चला गया, कट गया, तो फिर रहा कहाँ पर? होत जो लिखा है कायम है, सर काटा तो कायम कहाँ पर रखा। और सर राखे सर जात है कि सर को रखा है तो वो चला गया। कैसे चला गया? वो तो रखा हुआ है, कटा तो है नहीं। तो इसका भी भेद महापुरुष खोलते हैं कि सर राखे सर जात है, यानी कि अभिमान रूपी सर को अगर रखते हो, कायम रखते हो, तो इज्जत रूपी सर चला जाता है, वो गया। और सर काटे सर होता है कि अगर तुमने अपनी मैं के सर रूपी, इस मैं रूपी सर को काट दिया अपने, तो फिर तेरा इज्जत रूपी सर ये कायम रहेगा, उसको कोई नहीं मिटा सकेगा। तो इस तरह से ये संतों महात्माओं की वाणी, ये महापुरुषों के वचन, ये हमेशा से इंसानों तक पहुँचे हैं। इंग्लिश में भी, अंग्रेज़ी में भी ये पंक्ति आती है, इट्स नाइस टू बी इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बी नाइस। कि तुम्हें इम्पोर्टेंस मिलती है, अच्छा है, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या इतराज़ है? If you become some important person, what's the harm in it? But the other aspect which is mentioned is very important. That it is nice to be important, but it is more important to be nice. अगर आप important बन गए हो, but वो आप में अच्छाई नहीं है जो नाइस का है। इफ यू बिकम एन इम्पॉर्टेंट पर्सन बट यू आर नॉट ए नाइस पर्सन बिकॉज यू आर एन एगोइस्ट, यू आर फुल ऑफ हेट्रेड, यू आर intolerant,
you have a stone heart. You are an important person, but you are not a nice person. So, even a person who is a common person, but he is nice to others, his stature is far higher than the one who is prominent, but he is not nice. He is full of selfishness. तो यही बात महापुरुष संत जन ये बताते आ रहे हैं और आज भी यही संदेश पैगाम दिया जा रहा है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, अंत में फिर से अपनी खुशी जाहिर करेगा जो यहाँ गोवा में पंजिम में आकर आपके दर्शन करके प्राप्त हुए हैं। और ये घड़ियाँ, ये पल मुबारक हैं और होते ही मुबारक वो पल हैं जो सत्य का संग करके बीतते हैं, जो इसका यश गुणगान करके बीतते हैं। वही पल महत्वपूर्ण होते हैं जो प्यार के साथ बीते हैं। तो इंसानों को यही कहा जाता है कि तुम भी एक एक पल को कीमती बना लो, देरी मत करो। जितनी जल्द तुम संभल जाओगे, जाग जाओगे, बाकी का सफ़र तुम्हारा वो सुंदर हो जाएगा, वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसमें देरी मत करो। मराठी में जल्दी को कहते हैं कि लवकर 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 लवकर। तो इसी को दास के ध्यान में आया कि लवकर जो कह रहे हैं जल्दी करो, अगला है अंग्रेज़ी का लव, कि लव कर, कि जल्दी जल्दी लव कर, इसमें देरी मत कर। क्योंकि जितनी जल्दी प्यार करेगा इंसान इंसान से, उतनी जल्द ही धरती जन्नत बनती चली जाएगी। साथ संगत जी, धन। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कह अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, कह अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। तू ही निरंकार, 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 तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा पुलनहार, मैं हाँ सदा पुलनहार, सदा पुलनहार, मैं हाँ सदा पुलनहार। दाता बख्शनहार तू है, दाता बख्शनहार, दाता बख्शनहार तू है, दाता बख्शनहार। अवगुण नाचतार मेरे, अवगुण नाचतार, अवगुण नाचतार मेरे, अवगुण नाचतार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार, रूप है संसार, तेरा रूप है संसार। भला करो करतार, सबदा भला करो करतार, भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मंग है दातार मेरी, मंग है दातार, मंग है दातार मेरी, मंग है दातार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार,
ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार, डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार। शरदा भक्ति प्यार बख्शो, शरदा भक्ति प्यार, शरदा भक्ति प्यार बख्शो, शरदा भक्ति प्यार। संतां दा सत्कार करा मैं